आयनाइजेशन एंथैल्पी हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी? इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द outermost electron from isolated gaseous atom। याद है? यस मैम, सेकंड को निकालने में उससे भी ज्यादा लगती है। Ionization enthalpy. So in the D block we are studying ionization enthalpies. So first point we discussed that क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए थे, चल बता। कि in D block also when we move from left to right ionization enthalpies no doubt increase when we move in a series, but उतना ज्यादा increase नहीं होता जितना increase होता है P block और S block में। What is the reason for that? The reason for that, reason लिख लिया था हमने कि when we move in a series between the nucleus and outermost electron, inner d electrons are there. As the number of d electrons are increasing, shielding effect increase होगा, पता ना ये? shielding effect will increase। यस मैम, ठीक है। now what will happen if shielding effect is increasing? Tell me। nucleus cannot इट exert विल प्रोटेक्ट। it will protect the outer electrons from the nucleus. Nucleus cannot exert that much force. It means to remove the valence electron, that much energy is not needed. No doubt it is increasing because effective nuclear charge is increasing in a period. But due to increase in the shielding effect, increase is not that much high. हमने लिख लिया था ये पॉइंट या नहीं? लास्ट लाइन लिया था मैम, क्या लिखी है? लास्ट लाइन बताओ जरा। एडर स्लोली कर लिया था। Ionization enthalpy value increases but rather slowly. बट रादर स्लोली। ओके ठीक है। सो आई थिंक 3 पॉइंट्स लिख लिए थे, है ना? अब 4th पॉइंट लिखते हैं। बेसिकली तो यही है। उससे पहले आई टोल्ड यू दैट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस बट द ट्रेंड इज नॉट रेगुलर, सो वी विल सी सर्टेन वेरिएशंस। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखो, राइट डाउन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, the first ionization enthalpy values for zinc, cadmium and mercury are very high. First ionization enthalpy values for zinc, cadmium and mercury are very high. Can you tell me the reason that why for zinc, cadmium and mercury first ionization enthalpies are very high? बता क्या रीजन होगा? Because beta they have in zinc like there is 4s2 3d10. Similarly in cadmium also d10 is there, in mercury also d10 is there. They have fully filled orbitals. Fully filled means they are very stable, so it is very difficult to remove the electrons from them, so their first ionization enthalpies will be very high. Clear? Yes, Hello. ma'am. So write down first ionization enthalpy. Yes, first ionization enthalpy values for zinc, cadmium and mercury are very high because of fully filled stable D10 configuration. Because of fully filled stable D10 configuration. Okay? Yes, ma'am. Okay. Now moving on to next point. Write down second and
third ionization enthalpies. Second and third ionization enthalpies increases with increase in atomic number. But some exceptions are there. But some exceptions are there. Let us discuss what is the meaning of this line. Beta, this is a general statement that second and third ionization enthalpies increase. What is the meaning? Why second and third will increase? Let us suppose we have an element A. When we will remove one electron, naturally it is more difficult to remove one more electron, isn't it? Yes, ma'am. So second and third ionization enthalpies are high, and they will definitely increase with increase in atomic number, because we know as we move in a period, size decreases, so ionization enthalpies increases, which is also be applicable to second and third. But what are the exception? Let us see. Now, certain exceptions. Let us discuss about the exceptions one by one. हाँ जी बेटा. So exception number 1. There is fall. All exceptions are based on the configuration. There is fall in second ionization enthalpy values from chromium to manganese and copper to zinc. Yes, let us discuss what is the reason for the fall in second ionization enthalpy values. Second ionization enthalpy value बोल रहा है कि कम हो जाएगी when we move from chromium to manganese. कम नहीं होनी चाहिए थी. क्यों? क्योंकि मैंगानीज क्रोमियम के बाद आता है. चल यादविंदर बता बेटा 3D सीरीज में एलिमेंट्स बता. लास्ट टाइम मैंने तुझको बोला था कि याद करके आना. Yes, ma'am. चल फिर. Scandium, titanium, titanium, radium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. Yes, very good. So elements are scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. ठीक है. Now there is exception as we move from chromium to manganese for second ionization enthalpy. Let us write down their configuration. What is the configuration for chromium, Yadvinder? It is 4s1 3d5. पता है ना exceptional होती है. And 3d5, 4s. yes, for manganese it is 4s2 3d5. Now after losing one electron, what will be the configuration for chromium? Let's see. Chromium plus 1 will have 3d5. It will lose electron from 4s, and Mn plus 1 will have configuration 4s1 3d5. Isn't it? Yes, ma'am. बेटा मैंने क्या पॉइंट बताया अभी? प्लीज टेल. कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद दोनों की ये कॉन्फ़िगरेशन बन गई. नाउ अब कॉन्फ़िगरेशन देख के बताओ कि क्रोमियम प्लस 1 को इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है या मैंगानीज प्लस 1 को? Manganese plus 1 को, ma'am.
यस, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो वो 3d5 हो जाएगा, और क्रोमियम प्लस तो ऑलरेडी हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, ठीक है। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ने की बजाय क्या हो जाती है, फॉल, कम हो जाती है। समझ आई बात? Yes, ma'am. सो फर्स्ट एक्सेप्शन इज फ्रॉम क्रोमियम टू मैंगनीज, ये याद रखनी है जहां जहां पे एक्सेप्शन है। एंड सेकंड एक्सेप्शन इज फ्रॉम कॉपर टू जिंक। लेट अस राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। बता फटाफट। 4s1 3d10, एंड जिंक क्या क्या होता है, Yes, ma'am. 4s2 3d10, isn't it? नाउ अब ये बता कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कॉपर क्या बन जाएगा, 3d10, 3d10. एंड जिंक क्या बन जाएगा, 4s1 3d10। 3d10 4s1. किसको इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है, जिंक को। Okay. सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज करना जिंक को आसान है, जिंक +1 को आसान है। सो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगी, फॉल। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ऑल द पॉइंट्स लिख लिए, सारे पॉइंट्स कहाँ तक लिखवाया बस था, मैं लिख फटाफट। This is because removal of second electron. This is because removal of second electron in manganese. Removal of second electron in manganese leads to stable D5 configuration. Removal of second electron in manganese leads to stable D5 configuration. Similarly, in zinc, removal of second electron leads to formation of stable D10 configuration. Formation of stable D10 configuration. Okay? Now, next okay, exception. ma'am. Yes. Next exception. Third ionization enthalpy value in case of manganese is very high. Third ionization enthalpy in case of manganese is very high. This is because, can you explain the reason? Exceptionally high value होती है मैंगानीज की थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की, क्योंकि वो उसकी 3d5 हो जाती है। यस वी नो कि Mn की कॉन्फ़िगरेशन 4s to 3d5 है, so after losing 2 electron it will have 3d5. If we want to remove the third electron, it has to be removed from d5, which is already very stable, so it is very difficult to remove third electron from Mn plus 2. That is why it shows exceptionally high value. So write down, this is because the removal of third electron disturbs the stable half-filled D5 configuration. Clear? Now let us write down next exception.
The next exception says third ionization enthalpy change from Fe plus 2 to Fe plus 3. Fe plus 2 to Fe plus 3 is relatively small. Yes, इसका रीजन बता, फिर मैं बताऊंगी. What will be the configuration of iron? पहले आयरन न्यूट्रल की बताओ. 4s2 3d6. हेलो यादविंदर. Yes, ma'am. तो प्लस Yes, ma'am. प्लस 2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 3d5. Now tell me, it wants to remove its electron one more or not? It wants to remove beta because after losing one electron it will attain d5 na. Getting my point? Yes, ma'am. So it means हाँ जी मैम. so इसको इलेक्ट्रॉन निकालना easy होगा comparatively. So write down in continuation is relatively small because the removal of third electron will lead to stable half-filled D5 configuration. ओके बेटा, समझ में आ गया सारा? Yes, ma'am. Now, last exception. Very high values of third ionization enthalpies for nickel, copper and zinc. Very high ionization values of third ionization enthalpy for nickel, copper and zinc confirms that they can show maximum +2 oxidation state. OS for oxidation state. Now what is the point? बेटा ये क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है. समटाइम्स ऐसे पूछ लेते हैं कि वाई निकल, कॉपर एंड जिंक हैज ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. इनमें नॉर्मली +3 नहीं मिलता. तो उसका रीजन क्या देना है हमने कि इनकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बहुत हाई होती है, इसके कारण इनमें +3 नहीं हो पाता. नेचुरली if third ionization value is very high, it means they are not able to lose their third electron. It means they can show maximum +2 oxidation state. Is it clear? कॉपर जिंक का तो पता है मैम, निकल का नहीं पता लगा. बेटा एक्चुअली इट इज आल्सो रिलेटेड विद पोटेंशियल. एज सच हम कॉन्फ़िगरेशन से जो केस बता सकते थे वो हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं, बट इट इज एक्सपेरिमेंटल. ठीक है, सो इसका भी ध्यान में ही रखना है. सो एक्चुअली एज क्लियरली नहीं इसको हम बता पाते, इसका ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, बट 3d8 में से इलेक्ट्रॉन निकालना भी उसको काफी डिफिकल्ट होता है, इसीलिए वो +2 ही शो करता है. ऐसे तो केसेस में इसका +4 भी मिलती है ऑक्सीडेशन स्टेट, बट यूजुअली इट शोज +2. ठीक है.
बेटा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझे। यस मैम, अंडरस्टूड। ओके, नाउ एक लास्ट और पॉइंट करना है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे इसके। अब हाँ अच्छा, थर्ड 3D सीरीज तो तुझे याद हो गई बेटा, 4D सीरीज की थी याद? अच्छा चल मुझे ये बता, व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? वी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर ना, व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, याद है यादविंदर? बेटा तेरी आवाज नहीं आ रही। यस मैम। Please explain lanthanide contraction. That as we move from 4D to 5D series, what happens? There is filling of 4f electrons, 4f 14 electron. कि मैम उसकी साइज का, हाँ, तो जो साइज इंक्रीज होना चाहिए था, तो मैम आप ही को जो साइज इंक्रीज होना चाहिए था वो नहीं होता। वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 4f के इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं और 4f का शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है, न्यूक्लियस उनको अट्रैक्ट कर लेता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो जो उसको दूर जाना चाहिए था शेल बढ़ने के कारण, कि शेल फोर्थ से फिफ्थ पे गई है, तो जो डिस्टेंस बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ता, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो बहुत वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि एफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, एफ का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। सो उसको जो न्यूक्लियस है वो अट्रैक्ट कर लेता है, दैट इज वाई उसका साइज जो है वो नहीं बढ़ता। ठीक है ना? अब सोच जरा, जब बेटा साइज नहीं बढ़ेगा, अच्छा व्हाट इज द नॉर्मल ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप? नॉर्मली वी डिक्रीज होती है। yes, normally ionization enthalpy decreases down the group, ठीक है, but in this case rather ionization enthalpy slightly increases. What I am saying, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, what is the point that when we move from 3D to 4D, size increases normally, size increases, ठीक है। now see, if size is increasing, what will happen? Ionization enthalpy decrease. Is it clear? साइज बढ़ेगा तो नेचुरली इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है, सो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा। बट व्हेन वी मूव फ्रॉम 4D to 5D, व्हाट हैपेंस? आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए थी, बट रादर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस स्लाइटली, रहती है। ऑलमोस्ट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, बट ये देखा गया रादर थोड़ा सा बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि साइज तो कांस्टेंट रहा, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ गया, एटॉमिक नंबर बढ़ गया, तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से प्रोटॉन बढ़ गए ना, प्रोटॉन बढ़ गए तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट हो गया, जिसके कारण वी आर सेइंग दैट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। समझ में आई बात? प्लीज रिमेम्बर द एक्सेप्शन इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बेटा एक्सेप्शंस ही पूछी जाती हैं, क्योंकि नॉर्मल ट्रेंड्स तो सभी को ही पता होते हैं। सो प्लीज राइट डाउन, एक तो ऐसा ही बना के लिख ले जैसा मैंने ये सारा बनाया, ये सारा जो बनाया है मैं सर्कल कर रही हूँ, इसे ऐसे लिख ले एक तो कॉपी पे, और उसके बाद लिख ले द आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज, द आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज of 5D elements, ionization enthalpy values of 5D elements are slightly higher than expected. जितना हम एक्सपेक्ट करते थे उससे थोड़ा सा ज्यादा आया, slightly higher than expected because of lanthanides filling, because of lanthanoids filling। जो 14 एलिमेंट्स होते हैं उनको lanthanides बोलते हैं। फुल स्टॉप, आगे लिखो। इन lanthanides 4f filling takes place,
In lanthanides, 4F filling takes place, which have very poor shielding effect. Which have very poor shielding effect. Leading to increase in the effective attraction of nucleus onto the outermost electron, thus making their removal difficult. समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके अब मैं देख कुछ क्वेश्चंस लिख के दे रही हूँ, ठीक है? वो क्वेश्चंस के आंसर हमने अभी जो डिस्कस किए हैं उसी में आ जाएंगे, तो वो क्वेश्चन लिख ले और उसके तूने आंसर्स लिखने हैं खुद। ये तेरा होमवर्क है। समझ में आई बात? सो क्वेश्चन नंबर 1, why chromium and copper have abnormally high second ionization enthalpy. Abnormally high second ionization enthalpy. Now question number 2, इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करके कॉपी में लिख के मुझे पिक्स भेजनी है, ऐसे नहीं छोड़ देना। समझ आ गई बात? आगे लिखो, why first ionization enthalpy of zinc is quite high. Almost every question will be explained on the basis of electronic configuration. Now third question, why copper, nickel, zinc generally do not show oxidation state greater than 2. We have just discussed, na? They do not show generally oxidation state greater than 2. What reasoning we will give here? Because they have very high values of third ionization enthalpy. Okay? यादविंदर, तेरे नेट कनेक्शन में मुझे कोई प्रॉब्लम लगती है? Yes. No, मैम। मैं जितने भी लगाता हूँ सर, मैम सभी में सुनता है। अच्छा चल कोई बात नहीं। आउट ऑफ मैंगनीज एंड आयरन, तू मेरी तो आवाज तुझे सुन रही है, बट तू तो बाकी क्लासेस में म्यूट ही रहता है, बोलता तो मेरे नहीं साथ। मैम, मैं बोलता हूँ। मुझे पता है कितना बोलता है। चल, which has out of manganese and iron which has, ये क्या लिखे मैंने? IE3 क्या होता है? बोलो। कौन सा मैम? क्वेश्चन देख, फोर्थ क्वेश्चन में IE3 लिखा है मैंने। व्हाट इज IE3? है आयनाइजेशन एंथैल्पी।
of removing third electron. या इट इज नोन एज थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। उसका रीजन बताना है, हमने अभी डिस्कस किया। अगला क्वेश्चन, इन 3D सीरीज which element has the highest, इसका क्या आंसर देगा? फिफ्थ वन, Iron. नहीं, जिंक। बेटा पीरियड में जब हम जाते हैं तो बढ़ती है ना, जिंक का भी तो वही सिचुएशन है, 3D10 नहीं हो जाता +2 का, जिंक +2 का। मैं तो ये दूसरा कुछ सोच के बैठा। समझ आ गया अब? यस। आगे लिख अगला क्वेश्चन। इन 3D series which element has the, इसका आंसर बता चल, ये सेकंड है। बोल। मम्मी इसमें कॉपर, कॉपर है इसका आंसर, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉपर आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन will have 3D10 ना? 310. Yes. That's why it is difficult to remove. Yeah. Last question. अब आ रही है मुझसे? हाँ अब आ रही है। क्या किया अब तूने? पहले मैं दूर होकर बोलता था। अच्छा, वाह। पहले मैं दूर होकर बोलता था। अब पास में होके बोला कर फिर। हेडफोन लगा लिया कर ना, है? ऐसे मुश्किल है बेटा, हेडफोन लगाया कर। ईयर की प्रॉब्लम हो जाएगी। ईयर की प्रॉब्लम, हाँ बात तो तेरी सही है। चल कोई बात नहीं, कभी कभी लगा लिया कर। देख सारे अपने आंसर्स हमने अभी डिस्कस किए हैं, सारे सभी आंसर्स ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये समझ गया बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी की प्रॉपर्टी? यस मैम। चल अब और प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं एक एक करके। अच्छा मुझे बता कि अब तक हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ ली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की? यस एक तो मैम हमने मतलब कि साइज कंपैरिजन वाला किया है, एटॉमिक आयनिक एक रेडियस, उनकी फीलिंग की है, फीलिंग की है। फीलिंग वाला किया है, एक हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी किया है, एक लैथेनाइट कंट्रैक्शन किया है। एक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स यस मैम। बनाया था ना, बाकी स्क्रीन परफेक्ट वो किया वगैरह। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, वो 2 ग्राफ बनाए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस और मैम। आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं। राइट डाउन, प्रॉपर्टी नंबर देख लेना कौन सा था, ठीक है अपने आप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, formation of interstitial compounds. Now first let us see what is meant by interstitial compounds. बेटा इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स पता क्या होते हैं? देख जैसे हमारे पास मान ले कोई किसी एलिमेंट का लैटिस है, लाइक सपोज टाइटेनियम है, ठीक है। चल इसको सिंपली ऐसे बना ले,
टाइटेनियम के जो एटम्स हैं हम उसको ऐसे दिखाते हैं। वेट अ मिनट। ये टाइटेनियम के एटम्स हैं एंड टाइटेनियम यू नो इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। 3D सीरीज में होता है टाइटेनियम, स्कैंडियम टाइटेनियम। ये जो मैं सर्कल बना रही हूँ दे आर द एटम्स ऑफ टाइटेनियम। फाइन। अब इसमें बेटा होता क्या है, समटाइम्स स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये जो मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं ना इनका साइज कम होता है तो हम इनको स्मॉल एलिमेंट्स बोल देते हैं। तो sometimes what happen that small atoms such as that of hydrogen, nitrogen, carbon, they get entrapped inside the empty spaces present in the crystal lattice of transition metals। मतलब जैसे ये empty spaces हैं, यहाँ पे मान ले हाइड्रोजन के एटम आ गए, ठीक है। तो ऐसे जो हमारे पास कंपाउंड बनता है ना ओवरऑल, अब इसे कंपाउंड क्यों बोला है मैंने, क्योंकि इसमें टाइटेनियम भी प्रेजेंट है और इसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोलते हैं। what happens now, कोई पूछे what are interstitial compound, what should be our answer? Interstitial compounds are those which are formed when small atoms like that of hydrogen, nitrogen, carbon are entrapped or you can say trapped inside the crystal lattice of metals। समझ आई बात? Yes. Yes, ma'am. अच्छा, अब इनके कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। दे आर यूजुअली नॉन स्टिशियोमेट्रिक। नॉन स्टिशियोमेट्रिक क्या होता है बेटा, कि इनका जो रेशियो है वो फिक्स नहीं होता। लाइक यू देख, इसका 1.7 है। अब ये 1.7 का मतलब क्या है कि टाइटेनियम 1 है तो हाइड्रोजन 1.7 है। यूजुअली तो हम ऐसे नहीं ना लिखते, जब ऐसे लिखते हैं तो इनको हम बोलते हैं दे आर नॉन स्टिशियोमेट्रिक। क्या है ये? नॉन स्टिशियोमेट्रिक है। इनका आपस में जो कोफिशिएंट रेशियो है वो फिक्स नहीं है। तो पहला कैरेक्टर तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड का क्या रहता है कि दे आर नॉन स्टिशियोमेट्रिक, ठीक है। सेकंड इनका क्या होता है कि इनमें जो बॉन्डिंग होती है वो ना तो प्योरली कोवेलेंट होती है ना प्योरली आयनिक होती है। क्या बोला है मैंने? दे आर नाइदर प्योरली कोवेलेंट नॉर प्योरली आयनिक। फर्स्ट कैरेक्टर। सेकंड, दे आर नॉन स्टिशियोमेट्रिक। उसके बाद दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स of what? Of pure metal. Like suppose you have pure titanium, on the other hand you have this interstitial compound, so it has been observed that interstitial compound have higher melting point than that of their pure metals and their metallic conductivity is high। इनकी मेटालिक कंडक्टिविटी अच्छी होती है एंड दे आर केमिकली इनर्ट, ये ज्यादा रिएक्ट नहीं करते किसी के साथ एंड दे आर वेरी हार्ड लाइक दैट ऑफ डायमंड, बोराइड स्पेशली। व्हाट आर बोराइड्स? बोराइड्स क्या होते हैं? जिनमें बोरोन चला जाता है अंदर। बोरोन भी स्मॉल एटम ही होते हैं बोरोन के। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. सो राइट डाउन, interstitial compounds are those interstitial compounds are those which are formed interstitial compounds are those which are formed when small atoms like hydrogen, carbon, nitrogen, etc. are trapped inside the crystal lattice of metals, are trapped inside the crystal lattice of metals. Next line, they are usually non-stoichiometric. They are usually non-stoichiometric
and they are neither typically ionic nor covalent. Neither typically ionic nor covalent. For example, ये देख वेनेडियम ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसमें हाइड्रोजन चला गया तो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन गया। देख 0.56 लिखा है मैंने, और कॉमा डाल के टाइटेनियम वाला लिख लेना, टाइटेनियम का बन जाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। और भी बेटा बहुत सारे होते हैं, जैसे ये लिख दिया। प्लेटिनम। नहीं इंटरेस्ट ऐसे तो डी ब्लॉक तो बहुत सारे एलिमेंट है, मैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड की बात कर रही हूँ। मैंगानीज में नाइट्रोजन भी करता है मैम, है, प्लेटिनम भी करता है। बेटा उसका कोई ऐसा जब भी मिला नहीं है, क्योंकि प्लैटिनम वैसे भी इनर्ट ही होता है, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, बट अभी कुछ एग्जांपल्स ही नोन है ये वाली। उसमें मैम हाइड्रोजन होती तो है बीच में इंटरस्टिशियल साइड्स में। उसमें प्लैटिनम में हाइड्रोजन जो है वो तो, जो तू बात कर रहा है ना, वो हाइड्रोजन उसमें एब्जॉर्ब होती है, वो कैटालिस्ट का काम करता है, तब की बात कर रहा है तू। ये डिफरेंट है, इनमें लाइक सम सॉर्ट ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ऐसे तो बन भी सकता है, मे बी इन लिटरेचर इट इज प्रेजेंट। समझ आ गई बात? यस। जो प्रॉपर्टीज लिख लिया फटाफट। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स: हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, comma higher than pure metals. High melting points higher than pure metals. Second, they retain their electrical conductivity. They retain their electrical conductivity. कि मेटल भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं और इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी दिखाते हैं। नेक्स्ट, दे आर केमिकली इनर्ट। दे आर केमिकली इनर्ट, रिएक्टिव नहीं होते। They are very hard. They are very hard. Comma, some borides. बोराइड मतलब जिनमें बोरोन जाता है अंदर। Some borides approach diamond in hardness. Some borides approach diamond in hardness. ये बना ली, स्ट्रक्चर बना लिया? नहीं मैम। बना ले जल्दी जल्दी। मैथ की क्लास लग गई? बना लीजिए मैम। अच्छा चल, अब अगली प्रॉपर्टी करते हैं। राइट डाउन। हेडिंग लिखो। यस। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। डी ब्लॉक की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वी आर गोइंग टू स्टडी। पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद लिखेंगे नोट्स, ठीक है? ओके मैम। यस बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ना, वो क्या बिहेवियर दिखा सकते हैं? आइदर दे कैन बी पैरामैग्नेटिक। What is meant by paramagnetic material? Like if you apply external magnetic field and your substance is slightly attracted by the external field, कि जो आपने external field like ये external magnetic field आपने अप्लाई किया एंड आपने अपना कोई डी ब्लॉक वाला एलिमेंट रखा, मान लो डी ब्लॉक वाला एलिमेंट एक्सटर्नल फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, देन इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पैरामैग्नेटिक। नाउ it can also be diamagnetic.
Diamagnetic means which will be repelled by the external field. Like if you apply the external magnetic field and the substance is repelled by the external field, then it is said to be diamagnetic. Third category is of ferromagnetic. Ferromagnetic is actually an extreme case of paramagnetic. It is actually what? It is the extreme case of paramagnetic. Means the substance will be extremely highly attracted by the external field. If we have placed the substance in the external field, it will be attracted highly by the external field. Then it is said to be ferromagnetic. Okay, समझ में आ गया? Yes. अच्छा, अब होता क्या है बेटा, ये ऐसा करेंगे, मैं तुझे समझा देती हूँ, अदरवाइज लिखने में टाइम वेस्ट होगा. मैं तुझे इसका नोट्स भेज दूंगी, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी का, तो तू समझ ले क्योंकि बहुत आसान है. तो मैंने क्या बोला कि सब्सटेंस कैन बी आइदर पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक. तीनों में क्या क्या बिहेवियर होता है? पैरामैग्नेटिक में अट्रैक्टेड स्लाइटली, डायामैग्नेटिक में इट विल बी रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल फील्ड, फेरोमैग्नेटिक में एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड. नाउ अब बेटा जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है ना, दैट इज बेसिकली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. एक्चुअली यू हैव वन चैप्टर ना सॉलिड स्टेट जो तू बात कर रहा था, उसमें ये हम डिटेल में भी पढ़ेंगे. पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों आता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की क्या होती है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट भी होती है, spin magnetic moment, and it also has orbital magnetic moment. क्या बोला मैंने? Due to unpaired electron, paramagnetic behavior is there, and each unpaired electron has magnetic moment which may be due to its spin motion, then it is called spin magnetic moment, which may be due to its orbital motion, that is known as orbital magnetic moment. इतनी बात समझ में आ गई? Yes ma'am. फिजिक्स में पढ़ा है मैग्नेटिज्म चैप्टर, उसमें पढ़ा ये सारा कुछ के नहीं पढ़ा? मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा है मैम. हाँ, तो हमने फॉर्मूला पढ़ना है ड्यू टू स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ओनली. ड्यू टू स्पिन मोशन द मैग्नेटिक मोमेंट इज नोन एज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट. And what is the formula of spin magnetic moment? The formula is mu is equal to n into n plus 2 under root Bohr magneton. Mu क्या है? It is the spin magnetic moment. Spin magnetic moment, and its formula is n into n plus 2, where n is what? N is the number of unpaired electrons. समझ में आ गई मेरी बात? Yes ma'am. ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का भी फॉर्मूला होता है, बट दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस. सो लेट अस डिस्कस वन क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस. यू वांट टू राइट डाउन और यू विल राइट थ्रू द? मुझे एक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट वाला समझाना मैम. समझा देती हूँ बेटा. मैं ये कह रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, तुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन की दो तरह की मोशन होती है. वो में एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज. नहीं, न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है उसे ऑर्बिटल मोशन कहते हैं, और वो अपने एक्सिस के अराउंड घूमता है उसे स्पिन मोशन कहते हैं. और दोनों मोशन के का वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो अलग बात है, वो स्पिन की आगे टाइप है कि वो अपने एक्सिस के अराउंड क्लॉकवाइज भी घूम सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है. बट यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट कि वेदर इट इज रिवॉल्विंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस और इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. When it is revolving around the nucleus, this motion is called orbital motion. When it revolves around its own axis, this motion is called spin motion. Due to both motions, it has magnetic moment. And the magnetic moment which is due to spin motion is known as spin magnetic moment, which is having this formula n into n plus 2 under root. समझ आई अब? n क्या है मैम? ये n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. मैं क्वेश्चन करवाती हूँ, अभी समझ में आएगा.
देख, चले क्वेश्चन लिखते हैं। अब इसका एक काम करियो यादविंदर, इसका तू एक पेज छोड़ दियो, आधा पेज छोड़ ओके देना, मैम। चल आधा पेज छोड़ दे, उसके बाद क्वेश्चन लिख। और वो आधे पेज में यही लिखना है जो मैंने तुझे समझाया कि 3 तरह की सब्सटेंसेस होती हैं। कौन कौन सी? बोल नाम। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरामैग्नेटिक। यस, तीनों के बारे में जो मैंने समझाया वही लिखवाऊंगी, और उसके बाद स्पिन मोशन में और ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन, इसको लिख ले। कैलकुलेट द spin magnetic moment of M2 plus ion. Spin magnetic moment of M2 plus ion where Z is equal to 27. Okay, now Yadvinder, tell me what is Z? Z is the atomic number ना? यस मैम। इसका मतलब हमने इसने बताया हुआ है कि M का एटॉमिक नंबर 27 है। अब न्यूट्रल की बात कर रहे हैं अभी। एटॉमिक नंबर तो नेचुरली नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, वो तो सेम ही रहेगा, बट फर्स्ट लेट अस राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ न्यूट्रल M. It will be argon 4s2 3d7. Now what will be यस मैम। configuration of Mn plus 2? It will be 3d7. 2 electron will be lost, isn't यस it? मैम। Now how the 7 electrons are arranged in 5d orbitals? 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7. Now how many unpaired electrons are there? 3. 3 मैम। Yes, it means, so we have to calculate now spin magnetic moment, means mu. Formula is n into n plus 2. 3 into 3 plus 2 अंडर रूट, कितना आ गया ये? अंडर रूट 15 बोहर मैग्नेटॉन। समझ में आ गया? दिस इज द आंसर, अंडर रूट 15। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। इज इट क्लियर बेटा? यस यादविंदर, मैम। अब एन यस समझ में, मैम। एन समझ में आ गया? बीएम को, बीएम बताना मैम। क्या बताऊं? बोहर बीएम। बोहर मैग्नेटॉन यूनिट्स हैं मैग्नेटिक मूवमेंट के। यूनिट्स। ओके, यस मैम। ओके। सो एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, वो तू खुद करेगा। राइट डाउन द क्वेश्चन। ये हो गया? ऐसे ही मैम। कैलकुलेट द magnetic moment of a divalent divalent मतलब 2 पॉजिटिव if atomic number is 25। इसको सॉल्व करके बताना मुझे। अब हम आगे करेंगे, स्पेस छोड़ दे। लिख लिया यस यादविंदर? मैम। चल अब अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तूने नंबर डाले थे? कौन कितनी हो गई प्रॉपर्टीज? नहीं मैम। तो डाल ले। नहीं मैम।
चल अगली लिख, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, फॉर्मेशन ऑफ, कल फिजिक्स की क्लास है तेरी? यस मैम, उनकी तो रोज ही होती है मैम। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे लगा छुट्टी छट्टी ना हो, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, तो अब वो कंपटीशन वाली भी लगाता है अलग से? नहीं मैम, सर नहीं लगाते अभी। अच्छा अच्छा, चल बेटा देख, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। कलर्ड आयंस क्या होता है, ये देखा गया कि जो मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं ना, वो कलर्ड आयंस बनाते हैं, ठीक है। अब उनका इसका रीजन देखना है हमने, तो देख अगला इसके बाद चैप्टर आना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, उसमें ये रीजन डिटेल में आएगा, बट फिर भी मैं तुझे समझा देती हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुझे ये पता है कि डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं? बोलो, डी शेल में 5, सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। यस मैम। ये मैंने 5 बना लिए, ठीक है, यस मैम। बट तू देख सकता है कि मैंने ये पांचों एक ही लेवल पे बनाए हैं। ये तुम लोग +1 में भी पढ़ते हो कि इनको हम डी जनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। Degenerate means they have same energy. All the 5 orbitals have same energy. ठीक है? But we will study that actually they get split up into 2 groups. Like this way. I am saying again that we will study their splitting in detail in coordination compounds. But please focus that under some conditions their degeneracy is broken. Degeneracy broken means they no longer remain of equal energy. They get split up into 2 sets. One set of 2 orbitals, it is called EG. E or pair में G. And this set is called T2G. What is the meaning of their names and ये क्या चीज है, that we will study in coordination compound. But what is the point, that the 5d orbitals get split up into 2 sets, one of 2 orbitals and one of 3 orbitals. Now what happens, let me take an example. Suppose we have this compound. Actually beta, it is a complex salt in which titanium oxidation state is +3. क्योंकि वाटर का ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ नहीं होता, एक्चुअली वाटर इज अ लीगेंड. Now what are ligands that we will study? Due to the ligands, actually the orbitals of titanium here, these d orbitals are of transition element na, and in this salt which I have written, titanium wala jo maine likha hai, titanium is the transition element, so these 5 d orbitals are that of titanium. Imagine this way, why they got split up? Due to presence of ligands which are water here. How they split up with ligand, that we will study. Now titanium is having +3 charge. You know that titanium has 22 electron. Its configuration is 4s2 3d2. What will be configuration of titanium +3? 3d1, isn't it? बेटा समझ में आई कॉन्फ़िगरेशन यादविंदर? यादविंदर? Yes ma'am. Okay, now please tell me how many electrons are there in 3D in titanium +3? 1. Here is the electron. 1. Now electron are always present in the lower energy orbital. Out of Eg and T2G, T2G has lower energy. So this D1 electron is present in T2G. Now what happens beta? It absorbs energy and gets shifted to higher orbital. It absorb energy and shifted to here. So electron यहाँ से jump करके यहाँ चला जाता है. समझ आई मैं क्या बोल रही हूँ? Yes ma'am. तो क्या होगा बेटा, ये एनर्जी अब्सॉर्ब करके ईजी में चला जाएगा, ठीक है. मान ले ये
ओहो, ऐसा हो गया। चल इसको समझ। क्या पॉइंट समझाने का ट्राई कर रही हूं मैं कि दो हमारे पास सेट्स बन गए थे। इलेक्ट्रॉन पहले तो लोअर में प्रेजेंट होगा, बट आफ्टर अब्सॉर्बिंग एनर्जी इट विल गेट शिफ्टेड। अब देख, विजिबल रीजन में से कुछ रीजन उसने अब्सॉर्ब करके हायर में शिफ्ट करने में यूज कर दिया, बाकी की लाइट वो क्या कर देगा बेटा? ट्रांसमिट। सम पोर्शन ऑफ द विजिबल इज अब्सॉर्ब्ड in jumping the electron from T to G to EG. Remaining portion will get transmitted and we will see complementary color. समझ आई बात? Like you have greenish yellow. ये क्या करता है टाइटेनियम का ये वाला जो कॉम्प्लेक्स आयन है, इट अब्सॉर्ब्स इन ग्रीनिश येलो रीजन। ग्रीनिश येलो जो विव गोयर का रीजन होता है उसको अब्सॉर्ब कर लेता है और हमें ये कलर दिखता है इसका वॉयलेट, because violet is the complementary color of greenish yellow, so the compound appears to be violet in color. बेटा रीजन समझ में आ गया कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं? Yes, ma'am. Okay, now there is one point. Point क्या है कि suppose the some salt is there in which scandium plus 3, it will be colorless. Can you explain this? Why it will be colorless? Because in scandium plus 3 no d or electron is there, isn't it? स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 Yeah, है, आर्गन 4s2 3d1, one. तीनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, डी जीरो है, डी में इलेक्ट्रॉन ही है नहीं तो वो जंप क्या करेगा? सिमिलरली टाइटेनियम प्लस 4 ये भी कलरलेस होता है, इट ऑल्सो हैज डी जीरो। एंड प्लीज सी हियर कॉपर प्लस 1। What titanium की क्या property की होता है? बेटा चैट में लिख तेरा डाउट, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कह रहा तू। प्लीज राइट द क्वेश्चन इन चैट। Nothing, ma'am. नहीं पूछ ले, कोई क्वेश्चन मन में नहीं रहना चाहिए। बोल, चल बोल के पूछ, देखती हूँ समझ आता है मुझे। ये टाइटेनियम को कहते हैं, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है शायद, इस तरह। टाइटेनियम क्या है हार्डेस्ट सब्सटेंस? हम तो कलर की बात कर रहे हैं। नहीं मैम, मुझे याद आ गया है, पूछा। चलो वो तो देख लेना, कोई बात नहीं उसकी तो। अच्छा, ये जो मैंने लिखे हैं नीचे ये भी कलरलेस हैं, इसका क्या रीजन है? ये सारे क्योंकि इनमें बेटा D10 होता है, फुली फिल्ड है, तो वो भी क्या फिर फुली फिल्ड वाले भी नहीं ना कर सकते, कोई उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं होगा जंप करने के लिए। जंप करना जरूरी है, जंप करने को बोलते हैं ट्रांजिशन, ऊपर से नीचे जाना या नीचे से ऊपर जाना। All the orbitals are already fully filled, so there are no vacant orbitals for transition. That is why जिनमें fully filled हैं वो भी colorless हैं और जिनमें D zero है वो भी colorless हैं। समझ आ गई? यस मैम। अच्छा, अब ना इसकी भी मैं फोटो भेज रही हूँ, लिखवाने में काफी टाइम चला जाएगा, तो अभी भेज देती हूँ फिर मुझे भूल जाएगा। ये कलर्ड आयंस वाले की मैं भेज रही हूँ, उसके हिसाब से तू स्पेस छोड़ दियो। ओके, समझ तो आ गया? यही सारा कुछ बेटा लिखा हुआ है जो मैंने तुझे अभी समझाया। एक मैं भेज रही हूँ, पिक मिल गई तो ओके। बताना। अब देख ले तुझे कितनी स्पेस लगेगी, उसके हिसाब से अपनी स्पेस छोड़ दे और हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। ठीक है, लिख ले, छोड़ दी। इस पे ज्यादा समझ आ रहा है जो, और जैसे आगे लिखती हूँ। आ रहा है मैम। विद प्रैक्टिस ये थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा।
राइटिंग पैड एक्चुअली, आगे तो मैं डायरेक्ट उस पे ही लिखती हूँ टच स्क्रीन पे. विच वन इज बेटर? ये बेटर है मैम. ये बेटर है. ओके, वेरी गुड. चल नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा एलॉय फॉर्मेशन. एलॉय फॉर्मेशन. अच्छा यादविंदर बेटा मुझे ये बता कि व्हाट आर एलॉयज? अलॉय में मिक्सचर होता है मैम, दो मेटल और उससे ज्यादा का. हाँ, होमोजेनियस मिक्सचर इनडेफिनेट होता है. कंपोजिशन. होमोजेनियस मिक्सचर होता है. टू और मोर देन, समझ आ गई? टू और मोर देन टू एलिमेंट्स. ठीक है. यस मैम. तो राइट डाउन एलॉयज आर होमोजेनियस. इनको हम सॉलिड सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं. सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा सॉलिड सॉल्यूशंस, सॉलिड इन सॉलिड, उसमें एलॉय के एग्जांपल पढ़ाते हैं. सॉल्यूट भी सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है. You know that every homogeneous mixture is called solution. Homogeneous mixture को ही solution बोलते हैं. So write down यस मैम. alloys are homogeneous solid solutions. Homogeneous solid solutions in which atoms of one metal are distributed randomly. Atoms of one metal are distributed randomly among the atoms of other. Atoms of one metal are distributed randomly among the atoms of other. लिख लिया? यस मैम. अब देख मैं यहाँ पे ना एक स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो उसको ध्यान से हम समझते हैं और उसको इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो हम पढ़ के आए हैं उसके साथ कंपेयर करेंगे कि क्या डिफरेंस है. अब ये देख, ये मैं ऑरेंज कलर से बना रही थी और बीच में मैंने ये येलो कलर से एलिमेंट ले लिया, एटम बना लिया. ठीक है, ये मैं बीच बीच में बनाऊंगी तो इसलिए मैंने पहले ही ड्रॉ कर दिए. कुछ ऐसा सिचुएशन इसमें हमारा बनेगा. कैसा सिचुएशन? देख ये जो ऑरेंज वाले हैं इनको रिप्लेस करने के लिए बीच बीच में हमने येलो वाले बनाए हैं, है ना? तो बेटा ये क्या है? तो देख रहा है कि इनका साइज जो है येलो और ऑरेंज का ऑलमोस्ट सेम है, साइज में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता इनमें, क्योंकि हमने क्या करना है, पूरे एटम को ही, एक एटम को हमने येलो से रिप्लेस करना है. तो कौन रिप्लेस कर सकता है? जिसका साइज मैच करे वही रिप्लेस कर सकता है कि नहीं? यस मैम. अब येलो वाले का साइज ऑलमोस्ट ऑरेंज वाले की रेंज में होगा तभी वो रिप्लेस कर पाया. और तुझे पता है कि जो डी ब्लॉक वाले हैं इनमें साइज में ज्यादा चेंजेस नहीं आते, हम पढ़ के आए ना. इवन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आफ्टर मिडवे साइज बिकम्स कांस्टेंट. Moreover, size of 4D, 5D is also constant and 3D का भी midway के बाद constant ही हो जाता है. So इसीलिए जो D block वाले हैं वो alloys बनाते हैं क्योंकि उनमें आपस में जो sizes हैं उनमें बहुत ज़्यादा difference नहीं होते. Alloys बनाने के लिए there is one condition that 15% के बीच में radius vary कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं. कि मान ले एक एलिमेंट ऑरेंज वाला है दूसरा येलो वाला है तो उनके रेडियस 15% से वेरी करते हैं तो वो एलॉय बना सकते हैं. और ये क्वेश्चन
देख इसमें क्या क्वेश्चन आएंगे. व्हाट आर एलॉय, हमें समझ में आ गया. और एलॉय डी ब्लॉक वाले क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनमें जो है सिमिलर रेडियाई होते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी काफी हद तक मैच करते हैं. समझ आ गई बात? यस मैम. चल फिर लिख ले जरा. alloys are generally formed alloys are generally formed by those atoms alloys are generally formed by those atoms whose atomic radii are within 15% of each other. Whose atomic radii are within 15% of each other. Next line. Transition elements show high tendency. Transition elements show high tendency for alloy formation. Transition elements show high tendency for alloy formation because of similar radii and other characteristics of transition metals. Because of similar radii and other characteristic of transition metals. आगे लिख ले. alloys are hard and they have generally high melting points. Alloys are hard and they have generally high melting points and are more resistant to corrosion than individual atoms. Individual elements लिख ले. They are more resistant to corrosion than individual elements. क्या हुआ, थक गया क्या? मैम अच्छा, समझ में आ गया बेटा सारा कुछ जितना पढ़ाया? यस मैम. अच्छा, कोई एग्जांपल ले ले. ब्रास सुना है? ब्रास कॉपर प्लस जिंक और ब्रोंज. ब्रोंज क्या होता है? कॉपर प्लस टिन. देख टिन जो है वो नॉन ट्रांजिशन है, फिर भी वो बना रहा है एलॉय. तो एलॉय ट्रांजिशन में भी हो सकती है, ट्रांजिशन नॉन ट्रांजिशन में भी, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन दैट रेडियाई 15% के बीच में होना चाहिए एंड प्रॉपर्टीज मैच करनी चाहिए. समझ में आ गया बेटा सारा? यस मैम. चल फिर ये नोट्स लिख लियो और मैं तुझे इसके क्वेश्चंस भेजूंगी और चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दे. ठीक है? ओके मैम. ओके बेटा, गुड नाइट. गुड नाइट मैम.